Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, I explain the control console equipment. This topic is from chapter 2, DCS Basic Packages. In last lecture, I have explained high level operators interface and low level operators interface. Okay, and we have also seen diagrams for high level human interface and low level operators interface, right? And I have also explained this diagram. In this diagram, this is data highway and which is connected to each block, and this is HLOI, high level operators interface. This is supervisory computer, PLC interface, traffic director, then after local control unit LCU, and direct dedicated loop controller, and this is multiplexer. Okay, so I have explained this diagram in last lecture, and today I explain in DCS configurations there are many topics you can see, right? But in today's lecture I explain high level operators interface, and I explain components of high level operators interface. DCS configurations, and today I am talking about only two components of DCS configurations, right? And first is HLOI, high level operators interface, and second one is low level operators interface. You can see components is video display and keyboard for high level operators interface, and peripheral devices is you can see displays, group display, overview display, detail display, graphic display, trend display, and alarm reporting. So this is peripheral device. So you can see, just a minute, I adjust it. So you can see in this diagram HLOI components are video display and keyboard. Today I explain high level operators interface. First component video display. Okay, and in low level operators interface, its components are dedicated card controller unit, operator controller, multiplexer, then remote session, super communication and sub communication, and power supply, right? So in this chapter I will explain components of high level operators interface and low level operators interface. So next, the the control console equipment is high level operators interface.
Let's see the console or high-level operators interface is the work center for operations. मतलब कि हमने ये वाला डायग्राम देखा था। सो ये वाला जो डायग्राम था उसमें आप देख सकते हो कि जो DCS कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉक वाइज उसके जो पार्ट्स है वो ज्यादा है, राइट। हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ काम है। पर मैंने आपको जो बताया कि हम अभी जो फोकस कर रहे हैं वो हाई लेवल ऑपरेटर्स इंटरफेस एंड लो लेवल ऑपरेटर्स इंटरफेस। सो I am talking about components of high level operators interface, right? So जो हाई लेवल ऑपरेटर का जो काम है वो क्या, सेंटर स्टेशन पे उसका पीसी होता है, पीसी में वीडियो डिस्प्ले एंड कीबोर्ड वो सब लगाया हुआ होता है। तो उसके दो ही कंपोनेंट हुए हाई लेवल ऑपरेटर इंटरफेस के। एक वीडियो डिस्प्ले, मतलब वहाँ वीडियो डिस्प्ले होता है जो वो देख सकता है, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज कीबोर्ड, राइट। अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो किससे चेंज करेगा, कीबोर्ड से चेंज करेगा। सो लेट्स सी आंसर। द console or high level operators interface is the work center for the operations. One CRT is usually dedicated to each section of plant. मतलब कि एक CRT तो लगाते ही है। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। Each of these CRTs require continuous attention। मगर हम प्लांट में जो हाई लेवल ऑपरेटर्स इंटरफेस उसका जो पीसी है, जो जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है उसका पीसी है, वहाँ पे हर एक प्लांट में एक तो डिस्प्ले होना ही चाहिए और उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व भी करना चाहिए। द हाई लेवल ऑपरेटर्स इंटरफेस also include keyboards, usually one per CRT। हाई लेवल ऑपरेटर इंटरफेस में हर एक CRT के साथ हम कीबोर्ड लगाते हैं। फिर कंपोनेंट्स की बात की कि हाई लेवल ऑपरेटर इंटरफेस में वीडियो डिस्प्ले एंड कीबोर्ड कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। तो उसमें पेरिफेरल डिवाइस कौन सी यूज करते हैं हाई लेवल ऑपरेटर इंटरफेस में, वो यहाँ पे डिस्कस किया है। The high-level operator interface peripherals include displays, recorder and printer units। मतलब जो हाई लेवल पेरिफेरल है उसमें डिस्प्ले लगाते हैं, रिकॉर्डर लगाते हैं, फिर प्रिंटर भी लगाते हैं। DCS system might consist of only a CRT display and keyboard in the control room and a local control unit in the field near the process area, which is a point-to-point capable connection between them as shown in figure। मतलब कि जो DCS जो सिस्टम है उसमें हाई लेवल ऑपरेटर इंटरफेस में हम वीडियो डिस्प्ले एंड कीबोर्ड लगाते हैं। फिर उसका जो कनेक्शन है वो हम लोकल कंट्रोल यूनिट के साथ करते हैं। तो उसका डायग्राम बताया है कि कैसे कनेक्शन होता है। सो यू कैन सी दिस इज कंट्रोल
मतलब कि हमारा सेंट्रल स्टेशन है जहाँ पे हाई लेवल ऑपरेटर जो है वो कुछ भी डेटा ऐड या रिमूव करना है वो यहाँ से कर सकता है। एंड ये रिमोट मॉड्यूल, राइट। सो ये दोनों के बीच में कनेक्शन कुछ इस तरीके से हम करते हैं, केबल थ्रू कनेक्शन करते हैं। अगर रिमोट है तो रिमोट में सिग्नल थ्रू सेंस हो जाएगा, राइट। तो that is remote module. So in remote module no need to connect cable. The distance between the CRT and the local control unit can be 1000 feet, 300 meter or more. मतलब कि जो CRT एंड LCU के बीच में डिस्टेंस है वो 1000 फीट और उसको मीटर में बोला है तो 300 मीटर या उससे ज्यादा होता है। LCUs can handle analog or digital input outputs. LCUs can generate from 8 to 32 or more analog outputs and can work with up to 256 digital inputs and outputs. यहाँ पे बात की है कि लोकल कंट्रोल यूनिट है वो कितने एनालॉग आउटपुट दे सकता है और डिजिटल इनपुट आउटपुट कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। एमसीक्यू में ये चीज पूछ सकते हैं, लोकल कंट्रोल यूनिट में कितने एनालॉग इनपुट हम दे सकते हैं, कितने एनालॉग आउटपुट दे सकते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट कितना होता है, राइट। नेक्स्ट, point to point wiring can also be used when there are several LCUs in system. मतलब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग भी हम यूज कर सकते हैं अगर एक से थोड़ा ज्यादा LCUs लगाए हैं तो। एक डायग्राम दिया है नेक्स्ट पेज में जिसमें 8 रिमोट LCUs कनेक्टेड है, right, individual cable to central console in star formation. So let's see. You can see in this diagram from central station more than one LCUs are connected. Okay. In this configuration, the operator interface with large number of loop but is not at using data highway. मतलब कि ये जो डायग्राम जो बताया है उसमें जो जो ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स जो इंटरफेस हो रहा है, ओके, कुछ वर्क करने के लिए, तो जो लूप्स है वो लूप तो ज्यादा मिलती है पर ये डायग्राम में अभी तक डेटा हाईवे यूज नहीं किया है, राइट। अभी अभी जो सिस्टम DCS सिस्टम चलती है तो उसमें हम डेटा हाईवे यूज करते हैं। The principal components of central operator station are a video display and a keyboard. मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रल ऑपरेटर स्टेशन है उसमें दो मेन कंपोनेंट है, एक वीडियो डिस्प्ले एंड दूसरा कीबोर्ड। This may be supplemented with memory storage device for read out and record keeping and interface to equipment for data acquisition, programmable controller and digital computers, right। मतलब उसमें
मेमोरी स्टोरेज, फिर डिवाइस को रीड आउट करना, रिकॉर्ड करना, राइट, और उसको डेटा भी ऐड करना। ओके, तो ये सब भी उसमें ऐड करते हैं हम। The principal components of central operator station are a video display and keyboard. So first see video display. वीडियो डिस्प्ले मतलब क्या कि अगर कुछ भी चीज हम विजुलाइज करते हैं, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, तो वो हमारा वीडियो डिस्प्ले हुआ। ओके, तो उसके बारे में ही डिस्कस किया है यहाँ पे। द प्रोसेस मॉनिटर, sometimes referred to as the operator's window to process, is usually a 19-inch and 475 mm। मतलब ऑपरेटर का जो मॉनिटर है वो 19 इंच का यूज करते हैं, राइट, और एमएम में 475 mm डायगोनल में डायमेंशन दिए हैं। मल्टी कलर टेलीविजन ट्यूब यूजिंग डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर जनरेशन, राइट, मतलब कि यहाँ पे हमें ग्राफ भी देखना है। ओके, तो डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए कि ग्राफ भी विजुलाइज हो सके। कोई जगह पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 25 इंच का भी डिस्प्ले लगाते हैं और उसका एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 625 mm होता है, राइट, जो वॉल माउंटेड डिस्प्ले होता है। एंड ऑब्जर्वर है वो कंट्रोल रूम जो जहाँ पे लगाया है, तो कंट्रोल रूम से वो इजीली विजुलाइज कर सकता है। मोस्ट सप्लायर डिपेंड ऑन विजिबल cursor control to define screen area, some use light pen। मतलब अगर कोई जगह पे किसी को दिखाना है कि भाई ये पॉइंट से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम कर्सर से दिखाएंगे या तो फिर लाइट पेन हम यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में अभी ये जो सिलेबस है वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट, तो पहले टच स्क्रीन वाला नहीं था डिस्प्ले, राइट, तो बुक में ऐसा लिखा है द न्यूएस्ट फीचर इज टच स्क्रीन सेंसिटिव। मतलब कि नया जो फीचर है वो टच स्क्रीन वाला है, टच स्क्रीन से ही हम वीडियो डिस्प्ले को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड वॉइस कमांड्स नॉट एक्सेप्ट, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वॉइस कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट, वीडियो डिस्प्ले में। फिर यहाँ पे बताया है कि इन वीडियो डिस्प्ले some suppliers give more emphasis to the and keyboard in moving among the displays affected by the use of dedicated function keys, addresses based on instrument tag number, addressing by group number, and function keys that are display dependent। मतलब कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ भी डेटा चेंज करना है, आपने प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट टैग नंबर, ग्रुप नंबर वो सब सीखा है, राइट, तो कोई भी प्रोसेस का जो डायग्राम है वो हम कैसे बनाएंगे, जैसे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में हम डायग्राम बनाया था वैसे ही हम वो वाला डायग्राम ड्रॉ किया हुआ होगा डिस्प्ले में, ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट टैग नंबर, ग्रुप नंबर वो सब वहाँ पे ही हम दे देंगे, तो उससे ही हम चेंज करेंगे, जो भी पैरामीटर चेंज करना है तो हम ऐसे ही चेंज करेंगे कीबोर्ड से। नेक्स्ट, फॉर auxiliary cursor
माउस, टच सेंसिटिव स्क्रीन, लाइट पेन, जूम टाइप जॉयस्टिक। ओके, तो एक्सिलरी कर्सर के लिए हम ये सब चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कीबोर्ड चलाऊंगी मैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, राइट? और सब कुछ नोट डाउन करते रहना। थैंक यू।